So, once again, good afternoon, everyone. Let us start the class with a prayer. Kindly close your eyes and let us pray. Dear all, dear God, we thank you to be alive in this moment. We thank you for giving us this life and all the magic of life. We thank you for good health, wealth, and wisdom. We thank you for all your mercy and blessings upon us. Dear God, your blessings turn the situation around. Dear God, your blessings turn the situation around. Faith can move mountains. Faith can move mountains. We thank you in advance for helping us clear J 2022 and NEET 2022 in flying colors. We thank you that we have got admission into AIMS Delhi and the best of IIT in the country. We thank you for all your magic, for all our hard work, and for helping us achieve the dream which you have put into our hearts. With a smile on the face, slowly and steadily, open your eyes with a deep breath in and a deep breath out. So, class, let us start for the day. All right. All right, let's start for the day, right? So, all right, I have some messages from Kartikeya. Kartikeya, I have been seeing आप लोगों ने मुझे assignments भेजे हैं. Once again, good work everyone. Keep doing that, right? Keep updating me. अभी आप मुझे WhatsApp के जरिए भेजिए. कल की क्लास में I'll be updating you all कि आपको कैसे एक ऐप है जिसका नाम है Google Classroom. It's an app by the Google Incorporation, that is Google group of companies, right? It's an app which easily connects the tutor and the students in the class, right? So how will we use this app? We'll be discussing in tomorrow's class, right? So in tomorrow's class, we'll have a discussion about Google Classroom and how are we going to use it. Right? I'll let you all know, right? I hope you all have started off with your DC Pandey work. So today we are going to discuss DC Pandey level 1. So for the same, please open your books or the WhatsApp which I have sent you, the WhatsApp message, right? Let's begin. So how are we going to clear? I'll tell you the strategy, right? So I will ask question number 1 to question number 10. Those who have queries, right, will raise their hands and tell me the number, right, of the questions they have doubts in, right? So one by one, this way, one slot, 1 to 10, then from 11 to 20, right? Then organized manner, right? 11 to 20, 21 to 30, and so on. We'll proceed until 106, right? So class, let's begin, right? Let's start off. So we have level 1, right? Yeah. So class, get going. Let me know as we have started.
Shrish, I think you have come late to the class. Please make sure if you're coming, come in time, right? Everybody must come at least 10 minutes early to the class, and make sure that you are in the class from 10 minutes in advance. If you're coming late, you have to put me a WhatsApp message and tell me why you're late. Make sure that this does not happen, right? Right. So this is a general instruction for everybody. Why? Because sometimes if we are reading something and you come late to the class, you might end up in missing something, right? So for the welfare and the goodness of all of you, I want that all of you come to the class in time. Let's start. Objective approach uh, to physics, right, by DC Pandey, level 1. Page number, it's on page number 45, right? Now, the first topic you will see scalar and vector quantities. Question number 1, it starts from. So I want you all to send me, to let me know if you have any queries in the question number 1 to 10, right? Okay, there might be some terms here, right? Where, like surface tension, moment of inertia, right? Potential energy, torque, electric flux, dipole moment. Many of you might not have an idea about what are these quantities, right? So for such questions, right, you will automatically get your answers when we read these chapters. So for example, the concept of electric flux, you'll be reading in class 12, right? The concept of moment of inertia, ये भी आप rotational motion में पढ़ोगे. तो देखो ऐसे chapters है ना, ऐसे chapters जो यहाँ पर दिए गए हैं या आपकी syllabus में है, तो ये क्या है जो 11th के जो फर्स्ट कुछ चैप्टर्स है ना, जैसे फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वेक्टर्स, इनमें उनका कुछ रेफरेंस आता है आपके बाद के चैप्टर्स का भी, राइट? सो यू माइट नॉट अंडरस्टैंड इट वन गो, but then make sure that you come, right, that you come to the class and ask your doubts as and when the process starts, right? Okay, so like as and when we cover all of this. So suppose surface area, तो अभी आपने surface area के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, right? So that is not a part of the doubt. तो वो सारे questions जो 1 से 10 के बीच में हैं और वो ऐसे terms से जुड़े हुए हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो जब आप वो पढ़ लेंगे अपने आप, आपको इन chapters इस question set पे वापस आना है और फिर try करना है, right? तब आपसे बन जाएंगे, fact based questions हैं, ठीक है? So let us then start from question number 1 to 10, ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें ऐसा कुछ पूछा गया है जो आपको पता है और नहीं आता. यस, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 1 से 10, what we have read, but so for example angular momentum, right, we have not read that. So I'll tell you which all questions not to ask right now. So question number 2, right, 3, then 4, 5, 6, right, 7, 8, in fact 9. I think all the questions I have terms जो आपकी syllabus में included नहीं है, इसीलिए we'll directly jump to question number 10, right? तो ये syllabus में कब आएंगे? जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, मतलब अभी syllabus में है but आपने पढ़े नहीं है. जैसे ही आप पढ़ोगे आपको इन questions पे वापस आना है, तब बन जाएंगे, right? So question number 10 to 20. Yes class, 10 to 20. Raise your hands first if you have any doubts. I'll ask, tell me, and then we'll proceed this way. So just give me a minute. Meanwhile, please raise your hand, right? Please raise your hand. Yes. Yeah. So I'm opening the screen. So I think we have 3 students who have doubts between 11 to 20. Rahul, Kushal, and Shrish. Right? So yes, get going. So let's first take in the order in which I can see the names of the students. Yes, Rahul. So we are taking the, basically this is clarity class where we are discussing the questions which you all could not make. The chapter's name is Vectors. Book's name is DC Pandey, right? The author's name is DC Pandey, Objective Approach to Physics, right? So starting off, you have level 1. We are first taking
level 1, right? And in this, right, in this we have question number, first phase is question number 10 to question number 20. Yes, Rahul, tell me, which questions do you want to ask? Yes, go ahead. सर क्वेश्चन नंबर 10 से 20 के बीच के पहले वो एक क्वेश्चन पूछना था, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना? हाँ हाँ, लेकिन ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उतना स्ट्रांगली अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा. जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, उस चैप्टर में आई विल बी क्लियरली एक्सप्लेनिंग कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना है व्हिच आर रिलेटेड टू वर्क एक्सेट्रा, राइट? सर क्योंकि 1 to 10 के बीच में जो क्वेश्चन थे उसमें वर्क और मोमेंटम के बीच का पूछा गया था, वो वेक्टर कौन सा है, तो उसमें मोमेंटम टिक किया हुआ है. वही इसीलिए मैंने आपको कहा ये जो टर्म्स है ना, मोमेंटम, वर्क, टॉर्क, ये आपने अभी हाँ. तो थोड़ा इंतजार करो. जैसे ही हम लोग 11th के पहले 4 से 5 चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे ना, आपको ये टर्म्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे. तो आपको तब इन क्वेश्चंस पे वापस आना, एंड विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व. ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो जनरली ही ले लिए जाते हैं जब वो आप चैप्टर शुरू करते हैं. तो ओके सर. क्लियर है सर क्वेश्चन नंबर, यस सर, एंड क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है. देखो between 10 to 20 one by one. Yes, Rahul, go ahead. क्वेश्चन नंबर 15 आगे बोलो. Between 10 to 20. Only 15? Yes sir. Okay. Kushal. Yes, Kushal, go ahead. Question number 12. 12. Okay. Next. That's it. Okay. Shrish. Sir, 15. 15. Okay. 15 is already there. Any other question? Okay. Let's check. And sir, 20. 20. Okay. Any other questions, Shrish Bacha? No, sir. Okay. So between 10 to 20, there are 3 questions. Let us see them one by one. All right. So you have first question, that is 12. Read the question, everyone. I hope everybody has the access to the book. In case not, please open your WhatsApp. I have sent you all the document in the group, right? Let me know in case you don't have the questions. All right. Yeah. So one of you, I think, has some issue coming up. Kartikeya, is the screen clear now? आपको जो board दिख रहा है, is it clear? Is the board clear to you, बच्चा? Yes sir, now it is clear. All right. Thank you. All right. So question number 12. सब लोग पढ़ो क्या लिखता है? If A plus B, देखो A plus B. देखो याद करो, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं. एक होता है उसके ऊपर एरो हेड लगाना, और दूसरा होता है अगर वो बोल्ड में दिया है देन इट इज अ वेक्टर, राइट? देयर आर सम स्टूडेंट्स, हो सकता है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सो दे माइट नॉट बी कनेक्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट, सम कॉन्सेप्ट्स इन वेक्टर्स. तो प्लीज मुझे बाद में बिल्कुल याद दिलाइएगा सो दैट वी कैन कवर दीज चैप्टर्स फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? So vector A plus B is equal to A minus B. We are being told what is the magnitude of vector B, right? ठीक है. ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? फर्स्ट थिंग, आप देखो दोनों तरफ A और B है, इनको एक ही साइड ले जाते हैं पहले, ठीक है? So your next step in the solution, in fact the first step in the solution will be take A here and take B here, right? So you'll have A minus A is equal to minus B minus B, correct? Which will give you 0 is equal to minus 2B, right? Minus 2 will go on the other side in the denominator, so you'll have B is equal to 0, right? B is equal to 0. So B is basically a null vector, right? Is this clear, everyone? Right? Okay. Just check the answer. I think I have the answer key with me. So it is 12. Option is D. All right. So we are correct with this. Clear है सबको ये? Everyone, जिनको भी clear है, please hand raise कर लो so that I'll know the question is clear.
जिनको भी क्लियर है वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए. एवरीवन, राइट, ऑल राइट. यस महिवेश बच्चा, आपको पूछना है कुछ, पूछ लो बच्चा. आपका हैंड रेज नहीं है, सो आई, हाँ यू आर अनम्यूटेड बच्चा, पूछो. यस महिवेश, ओके. ओके, ऑल राइट, ठीक है. आई थिंक महिवेश इज ऑल्सो रेज द हैंड. हाँ राहुल, आपको कुछ पूछना है बच्चा, पूछो राहुल बच्चा. आपका हैंड रेज नहीं है. यस राहुल बच्चा, पूछो. ओके, इट्स क्लियर. ठीक है देन, bring the hands down. हाँ हाँ राहुल, बोलो बोलो. नो सर, नो डाउट. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास क्विकली. You have next question. So this was, we were asked what is the value of vector b, its magnitude, right? Now coming to next question, we have question number 15. सभी लोग question पढ़ेंगे. Question says that the resultant of a and b makes an angle alpha with a and beta with b. देखो याद करो, हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा था, राइट? पैरेललोग्राम लॉ कैसा होता है? यहाँ पर आपके पास ये एक वेक्टर, राइट, और ये रहा दूसरा वेक्टर. So you have two vectors, correct? I'll draw it again. You have two vectors, right? Now, in order to go ahead with the parallelogram law, हमने क्या देखा था कि हम यहाँ पर ऐसे करके इनका resultant बना सकते हैं by making sure that these are adjacent sides of the parallelogram, right? Now, इनका resultant कहाँ होता है? It is along the diagonal to the parallelogram, right? So let's say this is the resultant along the diagonal. ठीक है? Now what do we have to do? Now it says कि भाई the resultant makes an angle alpha with a. ठीक है? So let's say this blue color line is telling you about vector a, whereas this line is telling you, or this arrow is telling you about b. तो इनका resultant यानी कि a plus b is over here. ठीक है? Now we are being told that the resultant makes an angle alpha with a. So something like this. Have a look. ये है alpha, ठीक है? And यहाँ पर जो एंगल दूसरा बन रहा है, that is beta. क्या लिखता है? We have to find out the relation between alpha and beta and a and b. If a and b are equal, not equal, greater than, less than, equal to. Okay, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, राइट? मुझे एक बात याद दिलाओ, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, राइट? सो लेट मी टेक एनी वन ऑफ यू जिनके साथ जो उस समय क्लास में थे. वीरज, यस वीरज, वीरज डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर राइटिंग फॉर दिस अल्फा? हमने tan अल्फा करके फॉर्मूला पढ़ा था, याद है क्या वीरज? यस, पैरेललोग्राम लॉ, यस सर, है ना? वो फॉर्मूला ध्यान से अपने नोट से पढ़ के बताना, राइट? यस, गो अहेड, बताओ. so tan alpha is equal to b sin theta. I'll write here b sin theta upon a plus b cos theta. a plus b cos theta, जहां पे थीटा क्या था? एंगल बिटवीन a and b, राइट? Yes sir. So a minus b. चेक कर लो, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको बताना है, राइट? चेक कर लो, वेरीफाई कर लो वीरज, वेरीफाई कर लो जिन्होंने डाउट रेज किया. अच्छा क्लास आप लोग, ओके, हाँ वेरीफाई कर लो, राइट? ठीक है. हाँ श्रीश, आपको कुछ बोलना है बच्चा, पूछो. कार्तिकेय एंड श्रीश, आपके हैंड रेज्ड हैं. यू वांट टू आस्क एनीथिंग? पूछ लो बच्चा. ठीक है. सो yes, now that we know, right, that now that we know that which one should be what is the angle which is being made, है ना? तो यहाँ से the understanding develops. क्या अंडरस्टैंडिंग देखना ध्यान से, ठीक है? या तो आप इस फॉर्मूला का की हेल्प लोगे जो मैंने यहाँ लिखा है, या देयर इज वन मोर एस्पेक्ट टू इट.
मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ पैरेललोग्राम्स बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना सभी लोग। दो पैरेललोग्राम्स हैं और उनमें कैसे डिफरेंस आ रहा है देखना। एक में मैंने बी को बड़ा बनाया है, ठीक है। सो हियर इन दिस वन वी आर टेकिंग टू केसेस। सपोज इन फर्स्ट केस b इज ग्रेटर देन a, राइट। ये b है और ये a, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड, right? So actually this, when I'm writing greater than, I mean magnitude is greater. So b is greater in magnitude than a. ये पहला केस देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, ऐसा कुछ। So when I draw the resultant, it will be something like this. Right? Now, I'll draw one more example in which A is greater than B. See, so this is case number 2. Case 2, ठीक है। Here, B will be greater than, A will be greater than B. This is A, right? And let us draw B now. Right? So, now let us draw the parallelogram. देखो अब, करेक्ट। अब यहां पर, अब सपोज आई वांट टू मेक द रिजल्ट। ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब विजुअल इंस्पेक्शन से बताओ। विजुअल इंस्पेक्शन मतलब देखकर बताना, ठीक है। तो विजुअल इंस्पेक्शन से बताओ, पहले केस में b was greater, सेकेंड केस में b smaller than a, राइट। और अब ये जो एंगल्स बन रहे हैं दोनों के बीच में, इनको मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। सो एज वी हैव टेकन, लेट्स फॉलो द सेम कलर कोड। हियर दिस इज अल्फा, हियर दिस इज अल्फा, राइट। सो कुशल, मुझे एक बात बताओ देखकर, केस 1 में अल्फा ज्यादा दिख रहा है या केस 2 में बड़ा दिख रहा है? केस 1 में। केस 1 में, राइट। So we have alpha over here is greater than beta. जबकि सेकेंड केस में क्या हो रहा है? अल्फा इज लेस देन बीटा। बीटा कौन सा एंगल है? जो रिजल्टेंट बी के साथ बना है। I'll name the vectors again. This is A and this is B. Right. तो आप लोग देख पा रहे हो ये चीज कि कैसे जब एक वेक्टर बड़ा है तो उससे जो जुड़ा हुआ एंगल है या उसके साथ जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वो कम है, जबकि अगर दूसरे केस में जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया तो उसके साथ जो एंगल अल्फा है वो छोटा हो गया। ये क्लियर हुआ क्या सबको विजुअल इंस्पेक्शन से? व्हेन ए इज ग्रेटर, जस्ट हैव अ लुक हियर, यहाँ देखो, व्हेन ए इज ग्रेटर अल्फा इज स्मॉलर, व्हेन ए इज स्मॉलर अल्फा इज ग्रेटर। क्लियर हुआ सबको? एवरीबॉडी, जिसको भी क्वेरी हो इस क्वेश्चन में वो पूछ लो, राइट। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, ऑप्शन नंबर अल्फा इज ग्रेटर देन बी इफ ए इज लेस देन बी। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी, चेक कर लो एक बार एवरीवन। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो। यस क्लास, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी विद दिस। क्लियर है सबको? राइट। सो if yes, let us move to the next one. Let us move to the next one. ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 15, 12 and 20। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, पढ़ेंगे सब लोग। If A and B are two non-zero vectors, तो सबसे पहले ना जो भी आप देखो, मेरी हैबिट देखो मैं कैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये आपको एब्जॉर्ब करना है। क्या कि आपके पास, मैं जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू टेल मी,
है ना, इसको बोलते हैं क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना, राइट. सो आई एम ऑब्जर्विंग द क्वेश्चंस वेरी क्लोजली, राइट. सी इट इज गिवन दैट A and B are non-zero vectors. Non-zero means their magnitude cannot be zero, right? This is one. Second point क्या लिखता है? Having equal magnitude. Okay, so vector A and vector B have equal magnitude, right? Now the angle between the vectors A and A minus B is, ठीक है. अब क्या कह रहा है? एंगल किसके बीच में बताना है? ए वेक्टर और ए माइनस बी के बीच में. एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ तो लेट्स दिस टाइम टेक अमीश. यस अमीश, फॉर्मूला बताओ तो. अगर सपोज मुझे दो वेक्टर्स सी और डी के बीच में एंगल निकालना है, तो अभी हमको दिस इज गिवन, दिस इज टू फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, सो सपोज दिस इज ए, राइट, दिस इज ए माइनस बी सपोज. ठीक है, अभी ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमको ये थीटा फाइंड करना है. ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कौन सा फॉर्मूला पता है? यस अमीश बोलो. सी और डी के बीच के एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? बोलो श्री. सॉरी बोलो अमीश. अमीश यस, हाँ अमीश बोलो. Sir, the formula is some for the magnitude of c vector minus d vector equals to root over c magnitude of c square नहीं plus magnitude. ये नहीं, सुनो ध्यान से सुनो. अगर दो वेक्टर्स हैं C और D, इनके बीच का एंगल बताना है, तो कैसे बताओ? ये पूछ रहा हूँ. वो भूल जाओ क्या पूछा है क्वेश्चन. C और D के बीच का एंगल बताना है. कोई भी दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस इज C, राइट, एंड दिस इज D. इनके बीच एक एंगल बना हुआ है अल्फा. ठीक है, अब बताना है अल्फा की क्या वैल्यू है. कैसे निकालोगे? याद करो. It is AB. हाँ बोलो. Sir, it is AB cos theta. हाँ, तो इस केस में C और D है, तो क्या हो जाएगा? CD cos थीटा. हाँ यार, AB cos theta. क्लियर हुआ बच्चा? Yes sir. ठीक है, तो हमारे केस में अल्फा या थीटा के बदले तो हम लिख देते हैं CD cos अल्फा. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमें कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो ये उसकी एक सबसे अच्छी ट्रिक होती है, राइट. कि आप या तो पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लिखो, राइट, रिजल्टेंट का, या फिर कॉस अल्फा लिखो फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन. तो अब हमारे पास वो दो वेक्टर सी और डी जिनके लिए हमको आंसर निकालना है, वो कौन कौन से हैं? देखो, हमारे लिए सी इज नथिंग बट ए और डी इज नथिंग बट ए माइनस बी, राइट. क्लियर है ये बात? नाउ वी ऑल्सो नो कि इनका आपस में मैग्नीट्यूड सेम है, राइट. क्लियर है क्या क्लास? यहां तक सबको क्लियर है जो भी मैंने कहा? ठीक है. सो योर अप्रोच, राइट. अच्छा, एनीबॉडी विद एनी क्वेरी, लाइक लेट मी नो. यू कैन आस्क योर डाउट इफ यू हैव एनी क्वेरी अंटिल हियर. जो मैंने अभी तक बताया है, इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछ लो. ठीक है. नाउ अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर से दो तरीके हो सकते हैं. वन कैन बी डायग्रामेटिक, राइट, एंड द अदर कैन बी बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. तो आपको डिसाइड करना है हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस पे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन, लाइक कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक. अब सपोज हमारे पास इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, राइट. सो सपोज आई राइट, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो इक्वल है, लेट मी टेक, right. So we have written given to find and formula. Let us write the next step. Solution. ठीक है. So let us take the magnitude of A and B equal to, let's say, x. ठीक है, दोनों की वैल्यू x है. Now suppose I want to find out what is A minus B. तो उसके लिए हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ a square plus b square minus 2ab cos theta, where theta is the angle between a and b, right. So suppose यहाँ पर हमने थीटा a और इनके बीच में लिया है, तो हम कोई भी दूसरा वेक्टर यूज कर लेते हैं या दूसरा
एंगल यूज कर लेते हैं. सो लेट्स से गामा, राइट. दिस कैन बी वन अप्रोच पॉसिबल, जहां पे आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos gamma, right? This will be value of a minus b, right? And value of a वो तो हमको पता ही है, that is equal to x, correct? Now this is one way of proceeding, right? One way of proceeding, and then substituting these values over here, right? This can be one approach. मतलब हमारे दिमाग में पहले ये एक अप्रोच बननी चाहिए. अभी क्वेश्चन अलग हो सकता है, तरीका बदल सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच क्या क्या हो सकती है जो आपको एग्जाम में ट्राई करनी है, कैसे ट्राई करना है, राइट? ये पहली अप्रोच होनी चाहिए. ट्राई करके देखो इससे बन सकता है क्या, ये दिमाग पहला कहना चाहिए, राइट? अगली अप्रोच जो मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, डायग्रामेटिक और जो अभी हमने किया फॉर्मूला बेस्ड, राइट? पहले एक एक करके ट्राई करो, धीरे धीरे क्या होगा, आपको आदत हो जाएगी कि हर क्वेश्चन में डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन मुझे कौन सी अप्रोच यूज करनी है, राइट? तो सपोज इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास डायग्रामेटिक मेथड ज्यादा सही है. क्यों? देखो अब जैसे आई एम ड्रॉइंग आपके सामने, सपोज वी मेक वेक्टर ए एंड बी राइट नाउ इस तरह से, ठीक है? हमने एक को नाम दे दिया वेक्टर ए और दूसरे को नाम दे दिया वेक्टर बी. लेट्स टेक दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है? नाउ सपोज इनके बीच में एंगल है थीटा, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी तो हमको निकालना आता है, ए माइनस बी भी आता है क्या? बिल्कुल आता है. कैसे? देखो, अगर मैं ए माइनस बी कैसे आ सकता है, ए माइनस बी तब आ सकता है जब मैं ए में माइनस बी को ऐड कर दूं, हाँ या ना, राइट? तो अब मैं माइनस बी कैसे बनाऊंगा? माइनस बी क्या है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, राइट? वीरज टेल मी, माइनस बी क्या है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, राइट? तो बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए कि बी के ही डायरेक्शन में होना चाहिए? तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना. तो हम यहाँ पर माइनस बी कंस्ट्रक्ट करते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों. सो वी हैव माइनस बी, राइट? नाउ अगेन you know what is a, this is a, you know what is minus b. इन दोनों का, अब माइनस बी अपने आप में खुद में एक वेक्टर है, राइट? तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? ये देखो, एक वेक्टर इस तरह से, दूसरा वेक्टर इस तरह से. अगर रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करोगे? पैरेललोग्राम लॉ बनाओगे, हाँ या ना? तो पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इसके डायगोनल के अलोंग क्या लाया करेगा? इसका रिजल्टेंट. सो दिस वाज कोइंसिडेंटली a, this was minus b, so this will be a plus of minus b, right? Resultant of a and minus b, right? Correct? तो अब हम वो बना लेते हैं. देखो अब ये हमने पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करने के लिए पैरेललोग्राम बनाया, फिर उसके बाद यहां से हमने वेक्टर इनका रिजल्टेंट लिया a और माइनस b का. सो दिस बिकम्स, so I'll write it clearly. यहाँ पर this is a plus minus b while this is already given as a. ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें जब a minus a plus minus b का मतलब क्या हो गया? बेसिकली a minus b, ठीक है, राइट? तो हमें अब समझ में आ गया कि a माइनस बी निकालना है वेक्टर, तो उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, राइट? वाया दिस क्वेश्चन हमने ये समझा, राइट? अब हमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो दोबारा. देखो, क्वेश्चन लिखता है, डायग्राम से हम खोजने की कोशिश करते हैं कि a और a माइनस बी के बीच में क्या एंगल है, राइट? a दैट इज दिस एंड दिस, इस मतलब ये जो ब्लू लाइन है और ये जो ब्लैक लाइन है, हमको ये वाला एंगल खोजना है, करेक्ट, राइट? और क्वेश्चन में क्या दिया है? a और b की वैल्यू सेम है, मतलब इट इज नाउ नो लॉन्गर अ पैरेललोग्राम, इट हैज बिकम अ रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल मेजर करते हैं. देखो ऐसा एक पैरेललोग्राम में अगर सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं
तो वो कहलाने लगता है रोम्बस। इसको एज अ नोट अपने पास लिख लो सभी लोग, इन केस आइडिया हो तो भी, आइडिया ना हो तो भी। क्या? पैरेललोग्राम with all sides equal, with all sides equal, just 1 minute class. With all sides equal is called rhombus. इसको लिख लो सभी लोग इस नोट को। देखो rhombus ऐसा कुछ होता है, ये भी साइड इक्वल, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ठीक है। तो अब इस rhombus की एक खासियत क्या होती है? इस rhombus की खासियत ये होती है कि इसके सारे एंगल्स जो डायगोनल्स के दोनों तरफ हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल, एज इन basically this angle is equal to this one, right? So suppose अगर ये हम इसको नाम देते हैं let's say गामा, तो ये नहीं, गामा नहीं, अब कुछ और नाम देते हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कुछ। so let's say this is phi, right? तो ये भी हो जाएगा phi। क्लियर हो रहा है एवरीवन? और ये कुछ और एंगल होगा जो दूसरा एंगल अब यहाँ पे है, देखो दिस वन। सपोज अगर ये डेल्टा है तो ये भी कितना हो जाएगा? डेल्टा, राइट? क्लियर है सबको? दिस हैज टू बी क्लियर इन योर माइंड। ये पहले डायग्राम बना लो सभी लोग अपने पास। अच्छा, अब कंपेयर करो ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं 4, ए और ए माइनस बी, यानी कि ये हुआ आपका ए जो हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ बनाया है, राइट? और ये हो गया दिस वन, ये जो ग्रीन लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए माइनस बी। क्या इस डायग्राम को देखकर क्या आप फाई बता सकते हो क्या कितना है? राहुल आप बताओ, कैन यू सी दिस डायग्राम एंड टेल फाई कितना है? उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? 4 ऑप्शंस में से जीरो होगा क्या? पहले खुद सोच के बताओ। इज इट 0? इज इट 90? डज इट सीम टू बी 180 इन एनी एंगल और इन एनी केस? नो, राइट? करेक्ट। तो बेसिकली जो यहाँ पर फाई है, जो यहाँ पर फाई है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अभी अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, देखो ये वाली। दिस एंगल of the resultant with the other angles depends upon their magnitude and their orientation। मतलब इस थीटा पर डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन मतलब ये एंगल्स, ये वेक्टर्स किस तरह से ओरिएंटेड हैं या फिर उनके बीच का एंगल कितना है। ओरिएंटेशन इज बेसिकली रेफरिंग टू द एंगल। तो जब भी हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है, व्हेनेवर वी फाइंड अबाउट रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट बीटा और अल्फा, ये जो एंगल्स बना रहा है, दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन नेट थीटा कितना है, राइट? और उन एंगल्स का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज ए एंड बी, राइट? आई विल रिपीट वंस अगेन। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमें दिया गया था डेटा, उसके जरिए हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें कहा जा रहा है कि अल्फा फाइंड करो, सॉरी फाई फाइंड करो, इस जगह फाई फाइंड करो, राइट? फाई मतलब द एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड ए, ये फाइंड करना है। अब मैंने कहा आपसे कि क्या रोम्बस के गिवन प्रॉपर्टीज से आप फाई फाइंड कर सकते हो क्या? मैंने कहा फाई क्या है? रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल। देखो मतलब यहां से जैसे जो पहले केस में फाई था, इस केस में अल्फा है, ठीक है? सो अल्फा या फाई आर वन एंड द सेम एंगल अगर हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो, सपोज, ठीक है? तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पर, ए पर, थीटा पर, राइट? अगर हमें बी, ए और थीटा पता हो तो ही आप अल्फा निकाल सकते हो,
आई रिपीट, अगर आपको बी, ए और थीटा पता हो तो ही आप अल्फा निकाल सकते हो। मतलब रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकालने के लिए आपको उनकी वैल्यूज पता होना और थीटा पता होना बहुत जरूरी है, राइट। तो सपोज अगर इस फॉर्मूला में देखना, हाँ ठीक है, अगर इस फॉर्मूला में दे दिया जाए ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं तो देखो क्या होगा। राहुल सब्स्टिट्यूट करो इस फॉर्मूला में, ए और बी को सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल सब्स्टिट्यूट करो तो देखो कैसा हो जाएगा। हाँ राहुल माइक ऑन करो, बताओ। बी साइन थीटा, हाँ या ना, अपॉन बी प्लस बी कॉस थीटा। एम आई क्लियर राहुल बच्चा? हेलो राहुल, आर यू देयर? ओके, आई थिंक राहुल नेटवर्क हैज सम इशू, कोई बात नहीं। कुशल आप ट्राई करो। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैंने ए और बी दोनों को इक्वल ले लिया तो यहाँ से ऊपर नीचे बी कॉमन निकल के कट सकता है क्या? कुशल ट्राई करके बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। तो अब जैसे ही बी कॉमन निकल गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगी वैल्यू देखो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, राइट कुशल? क्लियर है क्या? Yes, sir. इसका Yes, क्या sir. मतलब है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये जो अल्फा है अब ये सिर्फ थीटा पर डिपेंड कर रहा है, राइट। इसका जो बी और ए पर डिपेंडेंस था वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? क्योंकि ए और बी एक दूसरे के इक्वल है। एम आई क्लियर कुशल? एम आई क्लियर ऑन दिस कि यहां पर tan अल्फा किसके इक्वल हो जा रहा है? tan अल्फा इक्वल हो जा रहा है sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। कब? जब ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं, राइट। तो जैसे दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है, मतलब अल्फा, उनमें से किसी एक वेक्टर के साथ वो इंडिपेंडेंट हो जाता है उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से, और सिर्फ डिपेंड किस पे करने लगता है? उनकी ओरिएंटेशन यानी कि थीटा पे। क्लियर हो रहा है? इस वजह से अगर हम यहां पर भी एक एंगल, एक वेक्टर बना रहे हैं, रिजल्टेंट ले रहे हैं, बस इस केस में क्या हो जा रहा है, वो रिजल्टेंट कितना है, ए और माइनस बी, बी की का उसका वैल्यू है। तो बेसिकली यहां पर भी ये एक रिजल्टेंट है, राइट। ए माइनस बी, आई ट्राई टू ड्रॉ दिस विद अ स्पॉटलाइट, ध्यान से देखना। ए माइनस बी एक रिजल्टेंट है, राइट। अब वो रिजल्टेंट अपने इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स के साथ, मतलब माइनस बी और प्लस ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? सपोज अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, tan अल्फा, tan अल्फा, राइट। सपोज ये एंगल अल्फा है, राइट। सो tan अल्फा विल अगेन बी द सेम इक्वेशन, राइट कुशल, जो अभी अभी हमने यहाँ पढ़ी। देखो tan अल्फा इज b sin थीटा, राइट। सो यू हैव Yes, sir. दिस वन इज, अब हमारे केस में क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा, राइट। माइनस बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू ऑफ देम, ऐसा, दिस एंगल थीटा, राइट। अभी केस में ये थीटा नहीं है, दिस इज 180 माइनस थीटा। हम मान लेते हैं, सपोज मैं दोबारा बनाता हूँ, देखो ये ए है, राइट। ये हो गया माइनस बी, राइट। सपोज इनके बीच का एंगल हम कुछ भी लेते हैं अभी, लेट्स से एनीथिंग, लेट्स से इस तरह से ट्रायंगल नाम का एक एंगल है, ठीक है। सो यू हैव दिस, राइट, देन यू हैव, आगे बोलो, नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस बी कॉस ऑफ दिस एंगल। यही होगा कुशल फॉर्मूला, राइट? राइट कुशल? Yes, sir. और हमें क्वेश्चन में Yes, क्या sir. दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू कैसी है, एक दूसरे के इक्वल है, राइट? Yes, sir. अच्छा, ए और बी इसमें इक्वल सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो जाता है बताओ, माइनस साइन ऑफ ट्राइंगल वैल्यू होल बाय बी, कॉमन ले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ दिस एंगल वैल्यू, राइट। तो बी और बी कट जा रहा है, राइट। कितना हो जा रहा है, माइनस साइन ऑफ दिस एंगल, राइट, होल बाय 1 माइनस कॉस ऑफ दैट एंगल। कहने का क्या मतलब है,
कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में, हाँ बोलो 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 बच्चा। सर वो ए की जगह पे माइनस भी आएगा ना? ए की जगह ओके या इसको माइनस कर लो, ठीक है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए। मैं बेसिकली क्या समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो क्या, कि हमारे पास पहले ये जो tan अल्फा था वो किस पर डिपेंड करता था, ए पर, बी पर और इनके बीच के एंगल पर। लेकिन जैसे ही ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो गया तो देखो यहाँ पर ए और बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था, पहले यहाँ पर बी आ रहा था, ए आ रहा था, जैसे ही ए और बी इक्वल हुए वो मैग्नीट्यूड हट गया यहाँ से, राइट। और अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ अल्फा किस पे डिपेंड करने लगा, इनके बीच के एंगल पे। ये बात क्लियर हुई क्या सबको? ये बात क्लियर हुई कि अब हमारे पास tan अल्फा दैट इज एंगल बिटवीन माइनस बी, एंगल बिटवीन माइनस बी और ए, ये है ए और ये माइनस बी, अब वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनके बीच के म्यूचुअल एंगल पे। इसीलिए देखो आपके पास क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है इट इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ए एंड बी। क्लियर हो रहा है एवरीवन? कुशल क्लियर हो रहा है कि कैसे उनके ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब उनके बीच के एंगल पे डिपेंडेंट है। यस सर, क्लियर है। राइट, ठीक है। पूछो अगर कोई डाउट हो तो। आई कैन समराइज दिस क्वेश्चन वंस अगेन। दिस इज ए, राइट, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है दिस इज बी, ठीक। हमें कहा जाता है कि ए और बी एक दूसरे के उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। अगर आप एक वेक्टर बनाओ दैट इज a माइनस बी और दूसरा वेक्टर है a, इनके बीच का एंगल आपको बताना है कितना है, राइट। तो सपोज हमने उस एंगल को कुछ भी लिया, देखते हैं, ये हो गया b, तो हमें अमीश ने बताया कि माइनस बी हो जाएगा, ठीक ऑपोजिट ऑफ b, राइट। नाउ हमने कहा कि हम a और माइनस b का रिजल्टेंट लेते हैं जिससे a माइनस बी आ जाए आंसर। देखो a और माइनस b का रिजल्टेंट लेते हैं कुछ इस तरह से, राइट। सो दिस विल बी नथिंग बट a प्लस ऑफ माइनस b। नाउ सपोज a और b के बीच का ये जो टोटल एंगल है, सो आई ड्रॉ इट विद सम अदर कलर। सपोज ये जो टोटल एंगल है और a और b के बीच का जो एंगल था अगर वो थीटा था, राइट, और सपोज ये वाला एंगल a और माइनस b के बीच का डेल्टा है, तो इसका मतलब a और b के बीच का एंगल है थीटा, राइट, और a और माइनस b के बीच का एंगल है डेल्टा। कुछ इस तरह से कि डेल्टा डिपेंड्स अपॉन थीटा। कैसे? डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, राइट। यू कैन सी एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ हमें कहा जा रहा है कि a, यहां देखना ध्यान से सभी लोग, फिर से a और a माइनस बी यानी कि ग्रीन वाली लाइन और इस a के बीच का एंगल कितना है, राइट। सो ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट। तो सपोज दिस इज 5, ठीक। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर हमें तो फॉर्मूला ही पता है। क्या फॉर्मूला पता है? कि tan phi इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी, राइट, साइन ऑफ डेल्टा, राइट, होल बाय a प्लस माइनस बी साइन ऑफ डेल्टा। इनफैक्ट यहां पर आएगा माइनस cos of delta. हाँ, cos ऑफ डेल्टा, राइट। क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन, ये पॉइंट क्लियर है? हमने बस क्या किया, जहां पर थीटा था उसकी जगह डेल्टा लिख दिया फॉर्मूला के लिए, राइट, एंड वी हैव जस्ट मेड श्योर दैट द एंटायर अदर पार्ट्स ऑफ द फॉर्मूला रिमेन द सेम। आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, उसके बेसिस को समझो, ठीक है, कि अदर पर्टिकुलर्स में मत अटको, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कि देखो पहले जो फाई था इट वाज डिपेंडिंग अपॉन ए, बीटा, राइट, एंड डेल्टा, राइट, और डेल्टा अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है? थीटा पर, राइट। डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन थीटा। लेकिन जैसे ही ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो गए तब tan phi की क्या वैल्यू हो गई? तब tan phi की वैल्यू हो गई माइनस बी साइन ऑफ डेल्टा होल बाय a की जगह क्या आ जाएगा? a की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी, राइट। इनफैक्ट a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। तो आप लोग चाहो कुशल
यहाँ पर आई थिंक आपके कहने पे कहीं पर मैंने कुछ लिख दिया था, इसको एक काम करो, यू कट दिस आउट. व्हाई? बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज सेम. मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज सेम. देखना तो क्या हो जाएगा, माइनस बी लिखने के बजाय यू विल राइट प्लस बी ओनली. क्यों? क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट? मैग्नीट्यूड सेम है. So you will have here, if you wish, instead of writing minus b, you can write plus b also. But अभी के लिए let us write, हमने क्योंकि पहले minus c लिया था, let us continue with the same pattern. क्योंकि हमने ऊपर नीचे minus b ले लिया है, right? So we'll continue with the same pattern. It will become minus b cos of. Now have a look. So we'll have इस तरह से बेसिकली, चाहे आप माइनस लें या प्लस लें, ऑल आई एम ट्राइंग टू से, अभी के लिए आप लोग अज्यूम कर लो माइनस प्लस जो भी है, राइट? हर केस में पहले डिपेंडेंस तीनों पे था, अब डिपेंडेंस किस पे हो गया? पाई का, सिर्फ डेल्टा पे, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, राइट? इसीलिए अभी दूसरी चीजें भूल जाओ, प्लस है माइनस है. सपोज अगर वो समझने में कंफ्यूजन आ रहा हो, फिलहाल फॉरगेट दैट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये डेल्टा पर वैल्यू डिपेंड कर रही है, राइट? आई होप माय मैसेज इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? कि पहले जो वैल्यू तीनों पर डिपेंड करती थी, ए बी और डेल्टा पर, अब वो सिर्फ डेल्टा पर डिपेंड कर रही है. दिस इज द मैसेज, राइट? और अगर वो डेल्टा पे डिपेंड कर रही है और डेल्टा डिपेंड करता है थीटा पे, देन थीटा क्या था? ए और बी के बीच का एंगल था. तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली दिस एंगल ऑफ डिपेंडेंस ऑफ phi is angle between a and a minus b is depending upon delta and delta is depending upon theta. और थीटा का होने का मतलब है ओरिएंटेशन, दोनों वेक्टर्स के बीच का ओरिएंटेशन कैसा है. यहाँ ये चीज है जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, राइट? इसको अपने पास लिख लो. इस पेज में जो भी लिखा है यू माइट राइट इट डाउन विथ योर सेल्फ, राइट? सो इवन इफ you ignore the sign, अभी के लिए हम प्लस माइनस साइन सब इग्नोर करते हैं. क्या प्लस है क्या माइनस है उसको भूल जाओ, राइट? सपोज कोई भी दो वेक्टर्स है जिनका हम वैल्यू ले रहे हैं और सब्स्टिट्यूट या उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मैं माइनस साइन क्यों इग्नोर करने की बात कर रहा हूँ? बिकॉज आप याद करो, मैंने आप लोगों को एक प्रिंसिपल पढ़ाया है. आई थिंक कुशल जस्ट डू वन थिंग, मुझे याद कराना, आप प्लस एक दो और जो बच्चे हैं, आप लोगों को वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़ाने हैं. मैंने एक्चुअली ना आप लोगों को सभी को एक नोट लिखाया है कि वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? कोई भी वेक्टर ले लो, हमेशा मैग्नीट्यूड कैसा होता है? पॉजिटिव. इस वजह से यहाँ पर मैं, चाहे आप ए के लिए मैग्नीट्यूड लो या माइनस ए के लिए लो, हमेशा कैसी साइन आनी चाहिए? पॉजिटिव साइन आनी चाहिए. इसीलिए जस्ट टू मेक श्योर कि you all don't get confused, I like genuinely took this minus sign, but because Kushal is in class and he hasn't read this concept with us before. But Kushal, आप clear है क्या कि हमेशा चाहे आप A लो या फिर आप B लो, at the end हमेशा आपके पास उनका वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव, राइट? A vector's magnitude is never negative. Clear है क्या कुशल? Magnitude Yes, of a vector is never negative. It is always taken as positive. मैंने अभी negative सिर्फ आप लोगों को, because you have not been present in the prior classes, तो इसलिए just to make sure कि आप delve हो जाओ with the current concept I took that. But is the point clear to you, कुशल बच्चा? Right? Yes, sir. All right. Yes. Class, anybody else कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में? Anything you want to ask? हाँ, अमीश पूछो. Yes, अमीश पूछो. Sir, I just wanted to say that minus b, it is the magnitude that only. Right. So as I told बच्चा कि actually Kushal is like Kushal hasn't been with us, right, with this class. So just for his sake, I had to explain it that way. But now I think the point is clear to Kushal also and everyone. Yes, sir. Yes, sir. Right. ठीक. Now let us take questions number 21 to 20. Yes, class, quick. अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है. रियली अप्रिशिएट इट. इसको अपने पास अच्छे से नोट डाउन करके रखो. व्हाटएवर आई हैव रिटन ऑन दिस पेज, प्लीज नोट इट डाउन वेरी प्रॉपर्ली. स्पेशली ये फाइनल वैल्यू, ये जो फाइनल आंसर मैंने लिखा है, ये आपको शायद कहीं इस तरह से नहीं मिलेगा जैसे मैंने समझाया है. इन नो बुक यू विल फाइंड दिस. तो इसको प्लीज अपने पास अच्छे से नोट डाउन करके रखो. राइट? ठीक है. ओके.
Question number 21 to 30. Any queries? Please raise your hand. 21 to 30. Yes, Kartikeya, tell me. हाँ कार्तिकेय बच्चा बोलो. Sir, question number 28. 28. Any others? कोई डाउट 21 से 30 के बीच में? ठीक है. So question number 28. हाँ हाँ. Anyone? हाँ 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 बोलो बोलो क्वेश्चन. So question number 21, 21, 22, 22. 24. एक एक करके one student at a time, right? So Kartikeya has said. 20, हाँ कुशल बोलो. 21, 27 and 27 and 28 and 29. 28 and 29. ठीक है. Okay. Yes. Shreesh बोलो श्रीश बच्चा. Sir, 24. 24 3. Okay. Anyone else apart from these questions कुछ पूछना हो? All right. Okay. ठीक है. सब लोग hand down कर सकते हैं and mic off कर सकते हैं. Right. So now Sir, starting. हाँ. sir एक क्वेश्चन था 19th वाला. Okay. उसमें मेरा आंसर tan इनवर्स में आ रहा था, लेकिन इसमें ऑप्शन cos और sin में दिया है, तो उसको अच्छा. कैसे करेंगे फिर? देखो सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुशल. रियली अप्रिशिएटेड. काफी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में अटक सकते हैं. देखो मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कुशल. ठीक है. सो आप उस क्वेश्चन में अप्लाई करना. अगर आपके पास सपोज हमारे पास ये एक ऐसा ट्रायंगल दिया है. ठीक है. इस ट्रायंगल में सपोज हमारे पास थीटा दिया जाता है. ये थीटा राइट. और कहा जाता है cos थीटा is equal to base by hypotenuse, right? So suppose it is given as 3 by, suppose this is given as base, 3 by hypotenuse is suppose 4. ठीक है. तो हमारे पास 3 by 4 ऐसा दिया हुआ है. Sorry 5. Let's take it as 5. I think that will give you better results. ठीक है. तो अब suppose ऐसा दिया है कुशल. ठीक है. अब मुझे कहा जा रहा है cos थीटा दिया हुआ था 3 by 5. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है. सपोज यहां से रिजल्ट क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 by 5, राइट. लेकिन अब मुझे थीटा को लिखना है tan इनवर्स में. तो कैसे लिखोगे? राइट. तो सबसे पहला काम होगा, जो कॉस में ऊपर दिया है उसको बेस मानो, राइट. जो यहाँ दिया है इसको हाइपोटेन्यूस मानो और ट्रायंगल बना लो. पहला स्टेप. ट्रायंगल बनाने के बाद ये वाला साइड कितना हो जाएगा कुशल बताओ? दिस विल बी इक्वल 5 square minus 3 square, right? That is equal to under root of 16, which is 4. Correct? तो अब क्या लिखोगे? tan इनवर्स की वैल्यू लिखनी है. कैसे लिखोगे बताओ? सबसे पहले tan थीटा लिखोगे. tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा will be equal to perpendicular by base, that is, हाँ कुशल बोलो. 4/5. 4/3, right? Sorry, 4. Correct, right? So you will have theta is equal to tan inverse of 4/3. और इसी तरह से सपोज मुझे साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले साइन थीटा निकाल लो. साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, दैट इज p अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट. So you'll have p by hypotenuse. I'll write it here. So this is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular theta के लिए perpendicular is 4 और hypotenuse is 5. So your answer of theta in terms of sine inverse will be sine inverse of 4/5. Clear है क्वेश्चन बच्चा? Yes sir. कि कभी भी आपको एक एंगल अगर cos इनवर्स के टर्म्स में आता है तो आप हमेशा उसको tan और sin इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21. देखो, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम. ओके, सो इसका आंसर शुड बी 0. व्हाई? क्योंकि देखो, आई टेल यू इसका सिंपल सा एग्जांपल व्हिच विल कम फ्रॉम इट्स फॉर्मूला इटसेल्फ. देखो, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एनीवन? दिस टाइम लेट्स टेक इट फ्रॉम माहिवेश. यस माहिवेश बच्चा. a square plus b square, बोलो. Okay, I think there is some
माइक इशू, कोई बात नहीं महेश, आई थिंक एक्चुअली वहां पे आपके एंड पे थोड़ा सा माइक का इशू है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। लेट अस टेक इट फ्रॉम एनी वन ऑफ यू। कार्तिकेय, यस कार्तिकेय बताओ क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बोलो 2ab cos ए बी कॉस थीटा, cos राइट। 90. अभी के लिए सपोज मैं जनरल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, ठीक है बच्चा, दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकल रहा है, जनरल फॉर्मूला यही होगा, Yes sir. राइट? राइट, ओके बच्चा, ठीक है। अच्छा क्लास सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये जो कॉस थीटा है ना, ये कॉस थीटा लाई करता है -1 से +1 के बीच में, ठीक वैसे ही जैसे साइन थीटा लाई करता है -1 से +1 के बीच में, करेक्ट, राइट। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? +1, राइट। अच्छा अब मेरी दूसरी बात सुनना, अगर मुझे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 21? इट सेज फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, राइट? फॉर द magnitude of two vectors giving a resultant, right, that has to be made maximum। मतलब आपको इस पूरे वैल्यू को कैसा बनाना है? मैक्सिमम बनाना है, राइट, राइट, मैक्सिमम बनाना है। तो हम देखते हैं उन दोनों के बीच में क्या एंगल होना चाहिए, लेट्स सी। तो मैक्सिमम बनाने के लिए cos थीटा को भी कैसा होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ एंगल पे डिपेंडेंस देखूं तो ये वाला साइड को मैक्सिमम बनाने के लिए इस पूरे साइड को मैक्सिमम होना होगा, और ये कब मैक्सिमम होगा? अगर a b दोनों कांस्टेंट है तो बचा कौन सा? cos थीटा। अगर cos थीटा की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब 2ab cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब 1 प्लस, या फिर हमारे केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब इनके अंडर रूट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बेसिकली पूरा का पूरा डिपेंडेंस किस पर आ जाता है? थीटा पर। कब? अगर a b दोनों कांस्टेंट हो तो, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको मैक्सिमम बनाना है, राइट, तो हमको क्या करना है? cos थीटा को मैक्सिमम बनाना है। तो cos थीटा मैक्सिमम देखो क्या वैल्यू है? 1 वैल्यू है, राइट। और cos थीटा कब होता है 1 के इक्वल? जब थीटा किसके इक्वल होता है? ये ट्राई करो राहुल। 9 cos थीटा 1 के इक्वल होता है 0 के इक्वल। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। 0 मतलब दोनों a और b एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, राइट। तभी इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम। क्लियर हो गया क्या सबको? एवरीवन, राइट? इज दिस क्लियर? I'll repeat once again for the best understanding. A plus B का रिजल्टेंट इस फॉर्मूला से दिया जाता है, थीटा पर डिपेंड करता है, अगर और cos थीटा पे डिपेंड करता है। मोर इम्पोर्टेंटली अगर cos थीटा मैक्सिमम हुआ तो ये पूरा टर्म मैक्सिमम, इसीलिए ये पूरा टर्म मैक्सिमम, इसीलिए इनका स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम। इसका मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। कब होती है? जब थीटा कैसा होता है? 0, राइट। क्लियर है ना सभी को बच्चा लोग? ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो बोलो बच्चा। सर बट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होती है और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी। हाँ देखो a प्लस बी तो आएगी इससे वैल्यू, देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, और वही हमारा रिजल्ट भी वही इंप्लाई कर रहा है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। और हमने क्या कहा कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? कुशल बोलो बोलो। अभी अभी हमने देखा ना cos थीटा लाई करता है -1 और +1 के बीच में, तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी कुशल? बोलो बोलो। 1, ठीक है। अब 1 डालो यहाँ पर cos थीटा की जगह, क्या हो जाएगा? फॉर मैक्सिमम
for finding out the maximum value of a plus b. You will have under root of a square plus b square plus 2ab, right? अब ये किसका फॉर्मूला है कुशल? a plus b होल स्क्वायर का, हाँ या ना? Yes, sir. और इसके ऊपर हमारे पास क्या है? रूट है, राइट? सो you'll have a plus b होल स्क्वायर का अंडर रूट, which is giving you a plus b. Am I clear, कुशल? कि Yes, sir. maximum value for a plus b का mod is equal to a plus b, right? अच्छा, मिनिमम कैसे आएगा कुशल? अब क्लियर हुआ क्या? मिनिमम कैसा आएगा? cos थीटा को कितना लेना पड़ेगा मिनिमम के लिए? 180 degrees. cos थीटा minus 1. करेक्ट, cos थीटा को -1, इसीलिए a plus b का mod will be equal to under root of a square plus b square, right? plus 2ab, लेकिन अब cos थीटा की जगह आ गया -1. now this is the formula of a minus b whole square, और ऊपर तो रूट है ही, so this will become a minus b, and therefore the value of resultant is minimum and equal to a minus b when cos theta is -1, that is theta कितना होना चाहिए जो अभी कुशल ने बोला 180 डिग्री, और यहाँ पर मैक्सिमम कब होता है a और b का रिजल्टेंट? जब cos थीटा कितना होता है 1, that is थीटा कितना होता है 0, और वो मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है a प्लस b, और यहाँ पर मिनिमम रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है a माइनस b. जहाँ क्या है a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, right? क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लो. दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, एक्सीलेंट क्वेश्चन, एंड एज एन इंपॉर्टेंट नोट इसको अपनी फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लेना. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा पेज है, दिस शुड गो इनटू योर फॉर्मूला कॉपी, राइट? ठीक है, ऑल राइट बच्चा लोग. सो लेट अस टेक नाउ द नेक्स्ट वन. आप लोगों ने जो अगला सवाल पूछा है, that is we have done with 19, we are done with 20th, right? all right, then we are done with 21st. are we? yeah, we have done 21st. let us see 22nd question. क्या लिखता है? minimum number of forces of unequal magnitudes whose vector sum can be equal to 0. okay, क्वेश्चन एक बार दोबारा सब लोग पढ़ लीजिए. राइट, ठीक है. अच्छा, अब हमें अलग अलग वेक्टर्स हैं जो अनइक्वल हैं एक दूसरे के, राइट? मतलब a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c. सपोज 3 वेक्टर्स हैं या सपोज 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है? हमें क्या करना है? 2 ऑप्शंस हो सकते हैं. क्वेश्चन में देखो कितने कितने लिखे हैं, 2, 3 और 4. पहले 2 और 3 कंसिडर करते हैं, ठीक है? हमको उतने वेक्टर्स चाहिए जिनका नेट वेक्टर सम कैसा हो सकता है? 0. क्लास ये हमने किया है क्लास में, उसका फॉर्म अलग था लेकिन हमने किया है. याद करो, आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, पॉलीगन लॉ. याद आ रहा है क्या क्लास? याद आ रहा है क्या राहुल? या चलो इस बार अब लेते हैं फिर से एक बार अमीश से. यस अमीश, याद आ रहा है क्या पॉलीगन लॉ क्या स्टेट करता है? बताओ. यस सर. बोलो सर. पॉलीगन लॉ के हिसाब से जितने भी वेक्टर है, अगर वो क्लोज पॉलीगन बनाते हैं, उनका वेक्टर सम 0 हो जाएगा. ठीक है, तो क्लोज्ड पॉलीगन मिनिमम कितने साइड्स रख सकता है अपने पास? सर 3. बस यही तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन. क्लियर हुआ? देखो हमारे पास कुशल एक लॉ होता है, उसको कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो ये स्टेट करता है, राइट? जो ये स्टेट करता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो ये बताता है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर एक पॉलीगन है, ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, कोई भी क्लोज्ड फिगर, स्ट्रेट लाइन से अगर आप किसी भी क्लोज्ड फिगर को बनाओगे तो उसको पॉलीगन बोलते हैं. जैसे ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, राइट, या फिर पेंटागन हुआ, राइट, या हेक्सागन हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सपोज एक पेंटागन है,
या फिर हेक्सागन है, राइट, हेप्टागन है, ऑक्टागन है एंड सो ऑन। तो अब इनमें अगर आपने इनके साइड्स को हेड टू हेड और टेल टू टेल की तरह जुड़े हुए वेक्टर्स मान लिया, देखो ऐसा हेड टू टेल, सॉरी हेड टू टेल, ऐसे हेड टू टेल अगर ऐसा मान लिया, तो सपोज अगर ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं, देन इनका सम कैसा होता है, 0। ये पॉलीगन लॉ कहता है। यहाँ देखो, अगर ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, राइट, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी, तो इनका सम कैसा होना चाहिए, 0, राइट। सपोज ये है पी, क्यू, आर और एस वेक्टर्स, तो इनका सम कितना हो जाना चाहिए कुशल, बोलो, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, कितना हो जाना चाहिए कुशल, इन सबका सम इक्वल टू, बोलो, 0 0, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अगर कभी भी हम वेक्टर्स ले रहे हैं तो और उनको एक क्लोज्ड पॉलीगन के फॉर्म में बना लेते हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है क्या कुशल बच्चा? तो एक मिनिमम पॉलीगन yes sir एक पॉलीगन के मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितने हो सकते हैं, 3, राइट। इसका मतलब ऐसे कितने वेक्टर्स लगेंगे जिनके जरिए आप उनका मैग्नीट्यूड 0 लेकर आ सकते हो, मिनिमम कितने वेक्टर्स लगेंगे, 3 वेक्टर्स लगेंगे, राइट कुशल, करेक्ट। yes अगर sir मुझे yes 3 sir साइड्स लग रहे हैं, अगर मुझे 3 साइड्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट 0 करने के लिए, इसका मतलब मुझे कम से कम 3 वेक्टर्स लगेंगे उनका नेट मैग्नीट्यूड 0 करने के लिए, करेक्ट। और क्वेश्चन में एक और चीज दी है, क्यों कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है वो अनइक्वल है। देखो ऐसे तो 2 वेक्टर से भी आंसर 0 आ सकता है, देखो अगर एक वेक्टर हो a प्लस बी, ये भी इक्वल टू 0 हो सकता है, कब, जब b किसके इक्वल है, -1 के, राइट। लेकिन उसके लिए क्या हो गया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, सेम हो गया, जबकि क्वेश्चन ये कंडीशन परमिसिबल ही नहीं करता। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, यानी कि वो अनइक्वल वेक्टर्स हैं। इस वजह से 2 वेक्टर्स अगर इक्वल होते, राइट, 2 वेक्टर्स अगर इक्वल होते तो ही उनका मैग्नीट्यूड या उनका नेट रिजल्टेंट 0 आ सकता था, राइट। लेकिन अभी के केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए आपको कम से कम 3 वेक्टर्स लगेंगे उनको नेट 0 करने के लिए, क्योंकि एक पॉलीगन के सिर्फ 3 साइड्स हो तो ही वो एक पॉलीगन कहलाता है, राइट। हाँ अमीश बच्चा बोलो। सर एक डाउट था कि सर जो पॉलीगॉन लॉ है उसमें हेड टू टेल कनेक्ट करना जरूरी है क्या वेक्टर्स को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर तुमने हेड टू टेल कनेक्ट नहीं किया तो फिर वेक्टर्स का सम कभी 0 आएगा ही नहीं। तुम ट्राई करके देख लो रियल टाइम में भी बना, राइट। क्लियर है बच्चा? यस सर। हमेशा हमेशा कनेक्शन शुड बी हेड टू टेल एंड अगेन टेल टू हेड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू हैव, आप लोगों ने अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29। ठीक है, 27 देखो, 5 इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ 10 सर 24th। अच्छा 24th, ओके 24th भी है, ठीक है 24th पढ़ो। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन and another of 8 Newton can be applied together to produce an effect of a single force of, ठीक है। देखो पूछ रहा है कि 8 और 6 से जो वैल्यू आएगी, राइट, मुझे बताओ 8 और 6 की मैक्सिमम, 2 वेक्टर्स का मैक्सिमम कितना आ सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा, कुशल ने जो डाउट पूछा था उससे हमने क्या पढ़ा, सपोज 2 वेक्टर्स हैं, एक है a और दूसरा है b, इनका मैक्सिमम क्या हो सकता है, कुशल बताओ, a प्लस b, राइट कुशल, a plus b है ना। और इनका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मैग्नीट्यूड की, a minus b a माइनस बी, राइट। अभी के केस में हमारे पास कौन कौन से 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, फोर्स हैं। फोर्स ना एक वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास 2 तरह के फोर्स दिए हैं, कौन कौन सा, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, राइट। तो अगर ये दोनों लग रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो नेट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बोलो 8 प्लस 6, हाँ या ना, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 न्यूटन। और मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, इनका डिफरेंस, दैट इज 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन, हाँ या ना। क्लियर हो रहा है क्या एवरीवन? इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो भी दोनों का रिजल्टेंट होगा ए और बी का,
अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, राइट, मिनिमम वैल्यू इज दिस, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट, ये वाली स्टेटमेंट देखो, कोई भी वैल्यू अपनी मैक्सिमम और मिनिमम के रेंज में लाई करती है, मतलब ए और बी लाइज बिटवीन इनकी मिनिमम वैल्यू, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इनफैक्ट उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पर, दिस विल बी ए माइनस बी से हमेशा बड़ा होगा और ए प्लस बी से हमेशा छोटा होगा। ये क्लियर हुआ क्या सबको? इसका मतलब कि आपके पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब हमने यहाँ जो लिखा है 8 और 6, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी lying between the maximum and minimum। इसका मतलब f resultant will lie always between 2 and 14 for this case, right? तो देखो 2 और 14 के बीच में कौन सी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में? पहला वैल्यू क्या है? 1 न्यूटन। मुझे बताओ श्रीश, मुझे बताओ, क्या 1 न्यूटन आंसर हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? Sir, because it doesn't lie between 2 and 14. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। अच्छा बताओ, मुझे बताओ 15 न्यूटन आंसर हो सकता है क्या? No, sir. नो। अच्छा 20 न्यूटन आंसर हो सकता है क्या? No, sir. ओके। क्या 11 न्यूटन आंसर हो सकता है? Yes, sir. क्यों 11 न्यूटन क्यों आंसर हो सकता है? Sir, because it lies between 2 and 14. Which are the minimum and maximum values of the resultant force। क्लियर हुआ क्या सबको? आपको क्लियर हुआ श्रीश ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है कुशल बच्चा। Sir, but when we calculate the resultant, हाँ we get 10 Newton. Sir, when we calculate the resultant, we get 10 Newton as the answer. आपको दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको उनके दोनों की वैल्यू और थीटा नहीं पता हो। देखो क्यों? क्योंकि हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होता है? बोलो बोलो श्रीश। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हमारे पास क्वेश्चन में सपोज a 6 है, सपोज b 8 है, क्या थीटा पता है आपको? डू यू नो थीटा? No, sir. हाँ बच्चा बोलो, आपको थीटा पता है क्या श्रीश? No, sir. तो फिर 10 कैसे आया? 10 तो आ ही नहीं सकता। तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको थीटा ना पता हो। क्लियर हुआ बच्चा? दो Yes, sir. वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कब निकाल सकते हो? उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तब निकल सकता है जब आपको उनकी वैल्यू पता हो, प्लस साथ साथ में आपको उनके बीच का एंगल पता हो। क्लियर हो रही है बात बच्चा? Yes, sir. क्वेश्चन में हमको थीटा नहीं पता, इसीलिए हम रिजल्टेंट अभी नहीं निकाल सकते। बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जरूर बता सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है सबको? श्रीश क्लियर हुआ? क्वेरी क्लियर हुई? Yes, sir. ओके ठीक है। तो एक बार रीचेक करना, आपने 10 मेरे ख्याल से कुछ अजम्पशन पे लिया होगा, आपने शायद थीटा को कुछ मान लिया होगा, तब आपके पास आंसर 10 आया होगा। या आई एम अज्यूमिंग दैट, आई डोंट नो, राइट? और मैंने वो मैग्नीट्यूड वाला यूज कर लिया था सर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट। नहीं, लेकिन वैसा करने पर आपने इनहेरेंट अजम्पशन ले लिया है कि थीटा 90 है। देखो जब थीटा 90 होगा तभी तो आप ऐसा कर सकते हो। चेक करो अपने फॉर्मूला को, क्योंकि आपने थीटा 90 डाला तो ही तो a और b वाला ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, हाँ या ना? वो तो तभी होगा जब, देखो तभी तो आपने लिखा होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, तभी तो 10 आया होगा आपके पास, हाँ या ना? यस सर। राइट? तो वो कब हुआ? जब आपने अज्यूम कर लिया कि थीटा कैसा है, 90। लेकिन क्या क्वेश्चन में थीटा 90 दिया है क्या श्रीश? नो सर। तो हम ले सकते हैं क्या अगर नहीं दिया हो तो? नो सर, नहीं ले सकते। राइट? अब याद रहेगा श्रीश बच्चा कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। हमेशा शुरुआत बेसिक से करनी है कि हमको क्या बेसिक्स पता है।
we know that the formula for A और B का resultant has to be calculated using this given formula. तो हमेशा शुरुआत यहीं से करनी है, right? ठीक है. Now let us move class to the next question. आपके पास अगला क्वेश्चन था. Okay, I think we have gone ahead. Yeah. So हमने क्वेश्चन नंबर 24 देखा, right? अगला क्वेश्चन है 27. ऑल राइट, 27 क्या कहता है हमारे पास? 27, 28, आई थिंक 28 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है, तो या 27 कहता है कि 5 equal forces हैं 10 न्यूटन which are applied at one point and all are lying on one plane. ठीक है, if the angles between them are equal then the resultant force will be. ठीक, ऑल राइट. 27th क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लो सब लोग. देखो अब ना, अगेन दिस 27th क्वेश्चन आई थिंक इज अगेन बोरोड फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा. देखो, दैट इज पॉलीगन लॉ, राइट? क्या लिखता है? 5 इक्वल वेक्टर्स हैं, सपोज A, B, C, D और E, राइट? 5 इक्वल है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, राइट? प्लस डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, राइट? इक्वल फोर्सेस है मतलब, और इक्वल फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन कह रहा है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है. क्योंकि देखो इनके बीच के एंगल की भी बात कही है, कहा गया है इफ द एंगल्स बिटवीन देम आर इक्वल, तो हमारे पास इक्वल एंगल्स है, राइट? और एक पॉइंट पे लग रहे हैं सब. सपोज दिस इज 1, राइट? सपोज दिस इज 2, राइट? सपोज दिस इज, सो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे बनाना पड़ेगा. हैव अ लुक, ठीक है? सपोज दिस इज 1, राइट? दिस इज 2, 3, 4 एंड दिस इज 5, राइट? इनके बीच के एंगल्स इक्वल हैं. एंगल कैसे मेजर करते हैं वेक्टर्स के बीच में? जब भी या तो वो को टर्मिनस हो या फिर कैसे हो, को इनिशियल. सपोज ये को अभी टर्मिनस है, राइट? इस तरह से इनको ज्वाइन कर देंगे और इनके बीच का एंगल ले लेंगे, ठीक है? सो वो एंगल इक्वल है पांचों के बीच में, राइट? ये दिया जा रहा है. और हमको क्या कहा जा रहा है? फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, राइट? तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करोगे? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ट्राई किया करो, क्या आप इसको एक पॉलीगन के फॉर्म में ओरिएंट कर सकते हो क्या? देखो, बिल्कुल कर सकते हो. कैसे? हैव अ लुक. अगर मेरे पास सपोज एक पेंटागन होता ऐसा कुछ, राइट? मेरे पास ये पेंटागन होता और इसकी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ दैट इज अ रेगुलर पेंटागन. रेगुलर पेंटागन मतलब इनके बीच का एंगल कैसा हो जाएगा? सेम, ठीक है? सो आई हैव अ रेगुलर पेंटागन. नाउ सपोज we are taking one by one different sides. Suppose this is one side, ठीक? ये वाला हो गया, राइट? अब इसकी बात करते हैं. देखो, ये ध्यान से देखना, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू कि अलग अलग वेक्टर्स को हम कैसे यहाँ से ओरिएंट करके लेकर आ रहे हैं. सो अलग अलग तरीके से इन सभी वेक्टर्स को हम अलग अलग तरीके से चाहें तो एक पॉलीगन के साइड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं. पॉलीगन के साइड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या तो कंपेयर कर सकते हैं, या तो फिर अगर हमारे पास वैसा वेक्टर नहीं दिया है, राइट? वैसा वेक्टर डायरेक्टली नहीं दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों में से किन्हीं दो का रिजल्टेंट जरूर इसको बना रहा होगा या इनमें से किसी एक वेक्टर को बना रहा होगा. सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ये 5 वेक्टर्स, अभी हमें नहीं पता इनका डायरेक्शन कैसा है, मैंने कोई भी रैंडम डायरेक्शन लिया. सपोज अब
इससे बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से नाउ मेक दीज 5 वेक्टर्स कुछ इस तरह से, ये है 1, राइट, सपोज दिस वन। नाउ लेट्स टेक दिस वन, इस तरह से, ये वाला सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सेकंड, थर्ड, ये वाला जिसको मैंने टिक किया है। So, but it is a hexagon. ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, आई थिंक पार्डन मी फॉर दिस, आई जस्ट, सो बेसिकली आप 6 एंगल ले लो या 5 एंगल ले लो, दोनों केस में सेम थिंग विल होल्ड ट्रू। सो लेट्स मेक अ पेंटागन फॉर दैट मैटर। देखो ठीक है, खुश। अब देखो, अब मैच करने की कोशिश करो वन बाय वन, somewhere or the other you will be able to, let's say this is 1, so this is 1, ठीक है। फिर उसके बाद this is 2, right, कुछ ऐसा। so here one of the forces should be oriented in this direction, अगला वाला have a look, ठीक है, ऐसा कुछ। so over here, then this one, have a look, this one, क्लियर हो रहा है। देन ये वाला, राइट, तो ये भी ऐसा हो जाएगा, देखो क्लियर हो रहा है क्या सबको। और आप चाहो तो इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप येलो वाला लाइन देखना, दिस इज 1, राइट, दिस वन, करेक्ट। नाउ ये वाले को देखो, दिस वन इज नथिंग बट ये वाला, करेक्ट। उसके बाद फिर इसको देखो, दिस वन, this force is nothing but this one. Similarly, this force is nothing but this one. उसी तरह से ये वाला फोर्स जिसको अब मैंने फाइनली येलो किया इज दिस वन। क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि जब भी कभी आपके पास किसी एक पॉइंट पर 5 इक्वल फोर्सेस काम कर रहे हैं, जैसे सपोज ए, बी, सी, डी और ई, तो मैंने उनको एक, और इनके बीच का एंगल सेम है, इसका मतलब मैं इनको एक रेगुलर पॉलीगन के फॉर्म में क्या कर सकता हूं, इनको अरेंज कर सकता हूं कुछ इस तरह से कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो इनके बीच का एंगल विल स्टिल रिमेन द सेम, दैट इज थीटा। all I have done is just rearrange the vectors, उनका ओरिएंटेशन हमने सेम रहने दिया, सिर्फ उनको रीअरेंज कर दिया। देखो अब a कहाँ आ गया, this one becomes a, I'll draw it maybe with another color, देखना, ठीक है। this one was a, over here this one becomes a, right, फिर उसके बाद this one becomes b, फिर उसके बाद c, so this one becomes c, फिर उसके बाद this was d, so this one becomes d, ठीक है, this one becomes e। मैच कर पा रहे हो सब लोग कि हमने क्या किया, एक पॉइंट पर 5 अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे थे, उनको एक पेंटागन के फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब मैंने हेक्सागन जैसे बना दिया था, राइट, तो उससे हड़बड़ाओ मत, देखो वो भी सही है। क्यों? कि अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट पर 6 फोर्सेस काम कर रहे हैं तो वो जरूर कोई एक हेक्सागन के फॉर्म में अरेंज किए जा सकते हैं, अगर उनके बीच का एंगल सेम है तो। देखो ऐसा, तो जरूर वो कुछ इस तरह से होंगे। देखो नाउ डेफिनेटली इफ यू कैन अरेंज दीज वेक्टर्स इन दिस फॉर्म, देखना या हमने इसको लिया पहले इस तरह से एक पॉइंट पर, ठीक, फिर सपोज इसको लिया इस तरह से, करेक्ट, फिर सपोज इसको लिया, राइट, इस तरह से, देन फोर्थ वाले को लिया यहाँ ऐसे, फिर फिफ्थ वाले को लिया ऐसे, फिर सिक्स्थ वाले को लिया। क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली अगर कोई 5 या 6 या n नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे काम करें, 4 भी कर सकते हैं, तो उनका नेट रिजल्टेंट पॉलीगन लॉ की वजह से कितना हो जाना चाहिए? बोलो, यस क्लास, बोलो कितना हो जाना चाहिए? अरे भाई बोलो बोलो। 0 0। क्लियर है सभी लोग? एवरीबॉडी?
This was the case of regular polygon, whereas this was the case of regular pixel. Okay, right, right. इसको नोट कर लो सभी लोग अपने पास, नोट इट डाउन. Basically, we have just rearranged the vectors. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29. ठीक है. ओके, आखिरी दो क्वेश्चन देखते हैं क्विकली. हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28. पढ़ो क्वेश्चन सब लोग. Okay, two vectors having equal magnitudes A make an angle theta with each other. ठीक है. The magnitude and direction of resultant are. बिल्कुल. देख, आपके पास ये एक वेक्टर A है, ये भी वेक्टर A है. ठीक है. मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है. सपोज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर का नाम कुछ भी ले. ठीक है. सपोज P और Q. अब हमें क्या कहा जा रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ठीक है. कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? बोलो कुशल, आप बताओ. रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. फिर से सोचो, क्या बोला आपने? दोबारा बोलो कुशल. रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. 2ab cos थीटा. हाँ, ओके. तो अब क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2aa दैट इज ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. राइट. अच्छा, अब मुझे वीरज या एनी वन ऑफ यू, हाँ, सो वीरज ये बताओ. वीरज, अब यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा. हाँ या ना? राइट, राइट वीरज? यस सर. तो अब 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा. हाँ या ना? राइट. अच्छा, अब मुझे वीरज एक फॉर्मूला रिकॉल करके बताओ, आपने cos 2 थीटा की क्या वैल्यू पढ़ी है? बोलो. cos 2 थीटा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा पढ़ा है. देखो ये पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ऐसा पढ़ा है क्या बच्चा आपने? यस सर. अच्छा, इसी तरह से cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलो. 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1. राइट बच्चा? करेक्ट. यस सर. यहाँ से अगर ये -1 को मैं दूसरे तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, बोलो. 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बस आपने बोला तो देखो आंसर आ गया. इसको बस सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ये तो आप जानते ही हो जाएगा. यस सर. करो, कितना आंसर आता है बताओ. 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. राइट, therefore you get the answer 2a cos थीटा बाय 2. ये क्लियर हुआ क्या सबको? एवरीवन? यस सर. हाँ हाँ, बोलो बोलो. यस सर, ऑल क्लियर. ऑल क्लियर. अच्छे से. ये वाला क्वेश्चन एकदम. यस सर. अच्छा, ये जो Yes, sir. क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसीलिए जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो किसके अलोंग होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग. क्लियर है क्या? जो इनका रिजल्टेंट है, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब अल्फा और बीटा, जिसको अपन ने पहले अल्फा बीटा पढ़ा था, याद आ रहा है? हमने पहले देखा था अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, when will this happen, when a is less than b. अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. and when a is greater than b, when a is greater than b, then alpha is less than beta. ये हमने देखा था अभी, याद आ रहा है सबको? इसी तरह से अगर a और b एक दूसरे के इक्वल हो जाए, then alpha is equal to beta. क्या है alpha beta? This angle which the resultant is making with respectively with a and b.
क्लियर है क्लास एवरीवन? राइट, क्लियर है क्या कि दिस बेसिकली जो रिजल्टेंट आया है, सपोज सी, दिस सी इज अलोंग द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब अल्फा और बीटा एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो इस लाइन को हम बाइसेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट इज अलोंग द बाइसेक्टर। व्हाई? बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये वाली लाइन इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर हुआ सबको? राइट, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिखता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दैट यू हैव बीन गिवन एज p plus q plus r is equal to 0। एक्सीलेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके मैथ्स के पेपर में भी आते हैं, जेई में। p plus q plus r is equal to 0, ठीक है। नाउ p plus q राइट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस r लिख सकते हैं, हाँ या ना? राइट, क्लियर है क्या क्लास? अच्छा, अब दोनों तरफ टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड करो तो, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स। मैग्नीट्यूड मतलब दोनों तरफ आपको एब्सोल्यूट की साइन लगानी है, तो क्या हो जाएगा? दिस एंड दिस, हाँ या ना? तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? p प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड, राइट। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, याद करो, अगर वेक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम। इनफैक्ट आपने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन आज घर में याद करके देखो। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर जो हमने पढ़ा था थ्योरी में, उसका क्या मतलब था? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर, जैसे अगर a है तो इसका नेगेटिव माइनस a होगा। इसका क्या मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? a और माइनस a का सेम। कैसा होगा? मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बस डायरेक्शन कैसा होगा? ऑपोजिट। डायरेक्शन कैसा होगा? ऑपोजिट। डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। क्लियर है ये सबको? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस पॉइंट कि जब भी कभी एक वेक्टर दूसरे का अलग है तो मैग्नीट्यूड विल बी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड विल बी सेम अगर वेक्टर्स आर नेगेटिव, और डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। ये श्रीज बच्चा आपकी क्लास है, इनफैक्ट हम क्लास एंड ही कर रहे हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग डाउट्स हैं वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास। तो कम से कम लगभग पहले 30 क्वेश्चन के आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं, ठीक है? ऑल राइट सर, क्लियर है ना? राइट, एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर, ऑल क्लियर। तो 1 से 30 के बीच में जो जो क्वेश्चंस आपने पिछली बार नहीं बनाए थे, राइट, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस राइट सॉल्व करो। एंड अगेन जितना भी अपडेट, जितना भी कर पाते हो वो अपडेट इवनिंग 7 o'clock तक शुड रीच मी, राइट। जितना भी कर पाते हो, अदर जितना कल बनाओगे या बाद में बनाओगे 7 o'clock से, वो कल भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऑलराइट बच्चों लोग, क्लियर? अरे भाई क्लियर एवरीवन? यस सर। ऑलराइट बच्चों लोग, देन यस सर। कैच अप करो। सोने से पहले जो भी आज हमने किया है उसको रिवाइज जरूर कर लेना। डू रिवाइज व्हाटएवर वी हैव रेड, और नहीं समझ में आए तो फिर कहना, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ठीक है, ऑल राइट। सो लेट अस मीट टुमारो फॉर द रेगुलर क्लास वेयर वी विल कंटिन्यू मैथमेटिकल टूल्स, राइट? और जो बच्चे जिनका कुछ पार्ट छूट गया हो प्लीज मुझे रिमाइंड कराना, वी कैच अप। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड कीप स्टडीइंग, स्टे मोटिवेटेड। गुड डे।